مبارک خدا کے کلام کی طرف آئیں گے اور خدا کے کلام کو سنیں گے۔ عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط اور اس کا 10 باب 5 سے 7۔ اس لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نذر کو پسند نہ کیا، بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا، پوری سوختنی قربانیوں اور گناہ کی قربانیوں سے تو خوش نہ ہوا۔ اس وقت میں نے کہا کہ دیکھ میں آیا ہوں، کتاب کے ورقوں میں میری نسبت لکھا ہوا ہے تاکہ اے خدا تیری مرضی پوری کرو۔ خدا دے کلام تے پڑھے اور سنے جان کے خدا اپنی برکت۔ آمین۔ ایک اور تلاوت ہم خداوند کے کلام میں سے حاصل کریں گے اور ہمارے بزرگ خادم اسسٹنٹ پاسٹر نیو لائف چرچ آف پاکستان کے ہمارے بزرگ خادم آئیں گے اور زبور کا حصہ نکالیں۔ زبور 40 6 آیت سے 8 آیت تک خداوند کے خادم سامنے آئیں گے اور ہم اس تلاوت کو حاصل کریں گے۔ قربانی اور نذر کو پسند نہیں کرتا، تو نے میرے کان کھول دیے ہیں۔ سوختنی قربانیوں اور خطا کی قربانیوں تو طلب نہیں کی۔ تب میں نے کہا دیکھ میں آیا ہوں، کتابوں کے ورقوں میں میری بابت لکھا ہے۔ اے میرے خدا، میری خوشی تیری مرضی پوری کرنے میں ہے، بلکہ تیری شریعت میرے دل میں ہے۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ آمین، پریز اللہ۔ بہت شکریہ۔ بیٹھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح نیو لائف چرچ آف پاکستان ایک دوسرے کو ہم ضرور پیغام دیں گے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ خداوند تجھے پیار کرتا ہے، خداوند آپ کو پیار کرتا ہے، خداوند آپ کی فکر کرتا ہے، خداوند آپ کی ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ بہت شکریہ۔ پلیز بیٹھ جائیں۔ سنڈے اسکول کے بچے جو بھی شیڈول کے مطابق ہیں اس کو پلیز دیکھیں۔ عزیزوں، آپ سب کا بھائی، باپ کا خادم، نیو لائف چرچ آف پاکستان سے پاسٹر عزیز آج اس خوبصورت تہوار پہ، جسے خوشیوں سے بھرا تہوار یعنی کرسمس کے نام سے ہم جانتے ہیں، آپ سب کے درمیان کلام کی روٹی لے کر حاضر ہوں۔ آمین، آمین، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اور آج کا پیغام، بے شک کہ ہم یسوع مسیح کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، بے شک کہ یسوع مسیح کی دید کرنے والوں کے بارے میں ہمارے پاس بہت ساری تعلیم ہے کہ کیسے مجوسیوں نے، کیسے جو ہے نا ستارے نے، اور کئی طرح کی اور چیزیں ہیں جنہوں نے یسوع مسیح کو ویلکم کیا، یسوع مسیح کی طرف اشارہ کیا۔ لیکن آج ایک بار پھر خدا کے روح کی مدد سے ہم آگے بڑھیں گے، اور آج کے کلام کا عنوان ہے نئی شروعات۔ آمین، آمین۔ ایک نیا آغاز، کہ کیوں خدا کو اپنے بیٹے انسان کے روپ یسوع میں اس دھرتی پر آنا پڑا۔ آمین، آمین۔ خدا ترتیب کا خدا ہے، خدا بے ترتیبی کبھی نہیں کرتا۔ اور نیو لائف کے اندر بھی بے شک یہ 3 سال آپ کے خادم کو ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں پہلے لوگ کہتے تھے بھئی ان کا ٹائم ٹیبل جو ہے نا وہ پرفیکٹ ہے، راولپنڈی سے مجھے یہ باتیں سننے کو ملتی تھی، لیکن جب خداوند نے مجھے نیو لائف میں شامل کیا تو میں نے اپنی آنکھوں سے یہ بات دیکھی ہے کہ خدا
واقعی ترتیب کا خدا ہے اور وہ ویسے ہی چاہتا ہے کہ اس کے لوگ بھی ترتیب میں آ جائیں. ہلیلویا. سو اس لیے اگر کوئی ورشپ نہیں کر پایا یا ورشپ میں اپنے آپ کو پیش نہیں کیا اس نے, تو اس میں خدا کا کوئی قصور نہیں ہے, کسی مینجمنٹ کا نہیں ہے. وہ خود ہو سکتا ہے کہ کیا بھی میں لیٹ ہوں یا کیا میں نہیں پا سکا. سو آئیں آج ہم اس پیغام کی طرف جائیں گے, اور پیغام کا عنوان کیا ہے, ساتھ والے کو بھی بتائیں, خود بھی ریپیٹ کریں, نئی شروعات. ہلیلویا. جب ہم اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ ہی خواہش کرتے ہیں کچھ نیا ہو, کچھ نیا ہو, تو اس نئے کے اندر خدا سب سے پہلے میری اور آپ کی زندگی کے اندر کس کو دیکھنا چاہتا ہے؟ جس میں آج میں اور آپ جس تہوار میں, اور وہ کرسمس ہے. ہلیلویا. ہلیلویا. اس سے پہلے کہ سارے معاملات کو بھی ہم بخوبی جانتے ہیں, اور اس حوالہ پر ہم نگاہ رکھیں گے عبرانیوں اس کا 10 باب 5ویں آیت میں. آج ہم 3 باتوں پر خاص غور کریں گے, آپ نوٹ کر سکتے ہیں. نمبر 1, قربانی کو پسند نہ کیا, قربانی کو پسند نہ کیا. نمبر 2, تو نے میرے لیے ایک بدن تیار کیا. آمین. تو نے میرے لیے ایک بدن تیار کیا. تیسری بات, تاکہ میں تیری مرضی پوری کروں. ہلیلویا. ہلیلویا. کیا ہم اس کو دوبارہ ریپیٹ کر سکتے ہیں؟ تو پلیز آپ لوگ. نمبر 1, تو نے قربانی کو پسند. تو کیا ہم جانتے ہیں دھرتی ساری پہ لوگ اپنے بچاؤ کے لیے یا اپنی زندگی میں بہتری کے لیے یا اپنے فیوچر میں اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے کیا پیش کر رہے ہیں؟ بولے قربانیاں. شاید کوئی پانی پلا کر, شاید کوئی کھانا کھلا کر, شاید کوئی روپیہ پیسہ دے کر, یا شاید کوئی اپنے بدن کی چیزیں, کپڑے یا دیگر چیزیں دے کر وہ خدا کے حضور کیا پیش کر رہا ہے؟ قربانی. لیکن یاد رکھیے گا میرے عزیزوں, اس سے پہلے کہ یہ چیزیں پاس ہو, بائبل میری اور آپ کی زندگی میں ایک چیز نمایاں کرتی ہے. اگر یہ چیزیں بہتر ہوتی یا پرفیکٹ ہوتی تو وہ پہلے کو کبھی معقوف نہ کرتا. بائبل میں کیا اس میں تلاوت کیا کہ اس نے پہلے کو کیا کیا؟ معقوف. بائبل مقدس 2 عہد ناموں کا مجموعہ ہے, اور 2 عہد کے اندر اگر ہم عبرانیوں ہی پڑھیں تو لکھا پرانی چیزیں جاتی رہیں اور دیکھو سب نیا ہے. آج ہم اس نئے کے بارے میں, نئی شروعات کے بارے میں جاننے کو ہے, اور اس نئے کے اندر سب چیزوں کو اس نے مجسم کر کے ایک تصویر مجھے اور آپ کو دکھا دی ہے. اگر ہم دیکھنا چاہیں, اور اس تصویر کا نام کیا ہے؟ بولے یسوع مسیح. یسوع مسیح. اس زمین پہ ہر ایک کے بچاؤ کے لیے خدائے قدوس رب الفاظ نے مجھے اور آپ کو ایک فوکس دیا ہے. اگر کوئی اپنا بچاؤ چاہتا ہے تو یسوع مسیح خدا کی طرف سے وہ ذریعہ ہے, وہ وسیلہ ہے, وہ سبب ہے جس میں انسان کی نجات موجود ہے, جس میں انسان کی, اگر روپے پیسے سے, سختنی قربانیوں سے, خطا کی قربانیوں سے, بیلوں بچڑوں اور بروں کی قربانیاں ہی کافی ہوتی تو خدا, میں آپ کو ایک تصویر میں لے کے جانا چاہتا ہوں. جب ہمارے بزرگ باپ ابراہم اپنے بیٹے کو پیش کرتے ہیں تو بیٹا کیا کہتا ہے؟ ابا جی, باپ, سب کچھ موجود ہے لیکن برا موجود ہے, برا موجود ہے. تو وہاں پہ کیا جواب آتا ہے؟ خدا آپ ہی مہیا کرے گا. یسوع مسیح
खुदा का वो कलाम है, यीशु मसीह खुदा की वो खूबसूरत यादगिरी है, याद दहानी है जिसको उसने वहां पर, ये कभी नहीं हो सकता कि जो चीजें खुदा पहले दे और फिर वापस ले, वो चाहे बेटा हो, वो चाहे पैसा हो, वो चाहे कोई भी चीजें हो, खुदा अपने कलाम को इस्तेमाल करने के लिए पत्थरों को भी इस्तेमाल कर सकता है, किसी चीज को भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन ये उसकी बड़ी शान है कि उसने इंसान की निजात के लिए अपने बेटे मेरे और आपके मसीहा यीशु को इस्तेमाल किया है। हालेलुया। आज कोई धरती पे अपनी निजात के लिए खुद को, अपने कामों को, अपनी कुर्बानियों को फोकस है, उस पर डिपेंड नहीं कर सकता कि शायद मैं यूं निजात पाऊंगा। नहीं, अगर ये जरिया, सबब, वसीला इंसान की निजात का होती तो यीशु मसीह आते ये ना कहते कि मुझसे पहले जितने आए, चोर और डाकू, बोल दे चोर और डाकू, चोर और डाकू, डरावने लफ्ज भी बोला करे, बेशक के हैं लेकिन वो बाइबल में दर्ज है। मुझसे पहले जितने आए हैं वो सब चोर और डाकू हैं। याद रखें, वो खुदावंद यीशु मसीह अपनी बाबत ये बात करते हैं कि ये वो कलाम है जो इंसान की पलीदगी को, उसकी सारी नागजीरी को, नाराजगी को धो सकता है, दूर कर सकता है। अगर जितनी भी कुर्बानियां दी गई उसमें भेड़ बकरों और बछड़ों की कुर्बानियां, उसके अंदर जो है ना कई तरह के और चढ़ावे, ठीक है, रुपया पैसा, फिर और चीजें हैकल के अंदर गुजरानी जाती थी। लेकिन निजात का तलक आकर अगर हम बाइबल में पढ़े तो लिखा है तो उसका नाम यीशु रखना, वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात अब देगा। मौत की वजह क्या है? बोले गुनाह। गुनाह, मौत की वजह क्या है? गुनाह। अब अगर कोई गुनाह के अंदर जिंदगी गुजार रहा है तो वो चाहे बीमारी से शिफा पा जाए, वो चाहे किसी गुर्बत से निजात पा जाए, किसी चीज से भी निजात पा जाए, जब उसके अंदर वो मर्ज बाकी है जिसका नतीजा मौत है, तो बाइबल में लिखा है तू सारी दुनिया भी हासिल करे, सारी दुनिया भी हासिल करे और अपनी जान ही का दुख उठाए तो तुझे क्या फायदा, तुझे क्या हासिल है? खुदा मुझे और आपको आरजी फायदा नहीं देना चाहता कि एक पैनाडोल खा के तो आरजी तो फायदा ले ले। नहीं, खुदा ने मेरे लिए और आपके लिए एक जबरदस्त अबदी इंतजाम किया और इस इंतजाम का नाम ले यीशु मसीह। याद रखें, यीशु मसीह का बदन में आना ये लिमिट होना है, लिमिटेड होना है। हालेलुया, हालेलुया। इससे पहले जैसे कुर्बानियां दी जाती थी, गुजरानी जाती थी, तो उनका एक टाइम होता था, उसके बाद साल के बाद फिर नई शुरुआत, फिर लेकिन खुदा ने मेरे लिए और आपके लिए अबदी इंतजाम किया है। साल या महीने या 2 माह 6 माह के बाद नहीं, बल्कि हमेशा की अबदी निजात का इंतजाम खुदा ने किया है और वो उसका बेटा मेरा और आपका मसीहा यीशु नासरी है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम पहले पॉइंट पे बात कर रहे हैं और वो क्या है? कुर्बानी। तूने कुर्बानी को पसंद है ना किया। हम क्या पेश कर रहे हैं? हाँ जी, अब खुद को भी जरा चेक चुप करना है ना। एक उसने पेश की है कुर्बानी और वो अपना बदन, वो अपने खून का एक एक कतरा बाइबल मुकद्दस के मुताबिक मेरे लिए और आपके लिए बड़ी निजात का पैकर है, एक बड़ी निजात का हिस्सा है। लेकिन लिखा कि तूने कुर्बानियों को पसंद ना किया और किस कुर्बानी को? अपने आप को पेश किया। खुदा आप मुहैया करेगा। हमारे बाप अब्राहम ने जो बदई तौर पर ईमान लाने वालों में पहला शख्स है, क्या जवाब दिया अपने बेटे को? खुदा आप मुहैया करेगा। याद रखिए, इसकी वजह एक और भी है, क्योंकि आदम
جو کہ جسمانی طور پر ہر فرد بشر کا باپ ہے، وہ کسی بھی قوم سے، قبیلے سے ہے، کسی مذہب سے ہے، باپ کا نام کیا ہے؟ بنی آدم علیہ السلام. لیکن ایک مرض لگ گئی، ایک پرابلم آ گئی آدم کے اندر، اور وہ کیا ہے؟ خدا کی مرضی نہیں بلکہ اپنی مرضی. اور اپنی مرضی بھی نہیں، ایک مخالف نے، لوسیفر نے، شیطان نے اپنی مرضی ہماری بزرگ ماں ہوا علیہ السلام کے اندر، ہوا کے اندر ڈالی، اور ہوا نے جب لی تو پھر کدھر ڈال دی؟ آج بھی چیک کریں میاں بیوی اپنے رشتے کے اندر، کیا ہم ایک دوسرے کی مرضی تو پوری کر رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس مرضی کو پورے کرنے کے پیچھے ہم ابلیس کو جلال دے رہے ہیں، ابلیس کے پیروکار ہیں؟ کیونکہ اس کو بھی کام کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ بدن. لیکن یہ بدن ہے کس کا؟ آدم اور ہوا کا بدن ہے کس کا؟ کس نے بنایا ہے؟ خدا نے. لیکن جب کوئی خدا کے کلام کو رد کر کے اس بدن میں جیسے آدم اور ہوا سے بدل لیا اس مرضی کے اندر چلا جاتا ہے تو پھر وہی معاملہ ہو جاتا ہے. نرا کدھر سے گیا ہے؟ پیو تے. نرا کدھر سے گیا ہے؟ اور اس بات کی طرف اشارہ ہے. یہ کوٹیشن یا محاورہ یہ کس کے لیے؟ یہ سیم جیسے آدم نے رشتے کو تو درجہ دے دیا کہ میاں بیوی ہیں، پر شاید ہمارے بزرگ نے اس بات کو نہیں بھول گیا کہ جو کلام پہلے ہوا تھا کہ جس روز تو نے یہ کیا تو مرا. یاد رکھیے گا آدم اور ہوا کو استعمال اس سے بھی پہلے ایک اور کسی نے اپنا بدن دیا، اور وہ کون تھا؟ کہیں سانپ. وہ کون تھا؟ اور سانپ نے اس کو دیا بدن کیونکہ وہ سب میں کیا تھا؟ چلاک تھا، ہوشیار. لیکن تخلیق کس کی تھی؟ پیداکار کس کی تھی؟ خدا کی. آج میں اور آپ بھی پلیز بی سیریس، بڑے محتاط رہیں. کہیں ایسا نہیں کہ میں بہت عقل مند ہو کر، بہت چلاک ہو کر، بہت ہوشیار ہو کر کہیں خدا کے کلام سے جس سے اس نے مجھے پیدا کیا ہے کہیں آگے تو نہیں نکل گیا. لکھا یوں تو مرا جس روز تو نے یہ کھایا جو کیا، اور واپس آئے وہی پر کہ خدا آپ مہیا کرے گا. خدا آپ. اب آدم نے گناہ کیا، جتنے بھی آدمی اس سے پیدا ہو گناہ کرے یا نہ کرے ان کا نسب نامہ کیا؟ گناہگار. آپ گناہگار کو نجات ہے. تو خدا کا پلان، خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہمیں گناہ سے، موت سے نجات مل جائے. ساری دنیا کو کس سے نجات مل جائے؟ گناہ سے. تو داؤد ہمارے بزرگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں گناہ کرنے کی وجہ سے گناہگار مینوں وچ گناہ دے. وہ بھی بیک گراؤنڈ دکھاتے، معاملہ پیچھے سے غلط آ رہا ہے، لیکن آج ہم شکر گزاری کریں. داؤد ہمارے بزرگ، ابراہم ہمارے بزرگ کی دعا کا منہ سے نکلنے والے کلام کا جواب ہے کہ خدا آپ مہیا کرے گا، اور اس مہیا ہونے والی برکت کا نام یسوع مسیح ہے. ہاللویا. کیونکہ گناہگار کو نجات، اندھا اندھے کو راہ، جو خود قرضدار ہے وہ دوسرے کا قرض چکا. تو یہ خدا کا انتظام ہے کہ خدا کسی کا قرضدار ہے، خدا گناہگار ہے، اسی لیے اس نے ایک بدل لیا ہے. ہاللویا. اس نے ایک، اور اس بدن کا نام یسوع مسیح ہے. اس بدن کا نام کیا ہے؟ اگر ہم اس بات کو دیکھیں تو یسوع مسیح کا بدن کے آنا، بدن کے اندر ظاہر ہونا، یہ ایک پیدائش نہیں ہے، وہ تو ازل سے ہے. کب سے ہے؟ ازل سے. اگر ہم ایک حوالہ کو نوٹ کریں، بے شک گھر جا کے تلاوت کریے گا. یوحنا 8 باب اس کی 58 آیت کے اندر لکھا ہے، تب خداوند یسوع نے ان کو بتایا کہ اس سے پہلے کہ ابراہم
پیدا ہوا میں تھا، میں ہوں۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ اس کا مطلب ہے یسوع مسیح کا اس دھرتی پہ آنا یہ کرسمس جو ہے نا اس کے موقع پر نہیں ہے، وہ تو شروع سے ہے۔ اور کئی بار نبیوں کی زندگی کے اندر بھی کئی جگہوں پر ظاہر ہوا ہے، اور کیا کہا؟ میں ہوں۔ یہاں پر بھی عبرانیوں میں، اس میں یوحنا میں 8:58 میں کیا کہتے ہیں؟ میں ہوں۔ اور آج میں اور آپ بے شک یسوع مسیح کا بدن میں آنا تو بہت سیلیبریٹ کر رہے ہیں، لیکن اس بدن کا مقصد، پرپس، پلان کیا ہے؟ تاکہ گناہ ہماری زندگی میں نہ رہے۔ بدن پہلے بھی یسوع سے پہلے کوئی مرا نہیں خدا کا کام کرتے کرتے۔ کیا کہ بائبل میں ایسے واقعات موجود ہیں کہ نہیں؟ پلیز بولا کریں۔ یسوع مسیح سے پہلے خدا کے نبی، انبیاء زادے جتنے بھی آئے ہیں کئی طرح سے ستائے گئے، کئی طرح سے گھائل کیے گئے، کسی کو آگ کی بھٹی میں ڈالا، کسی کو تیل کے اندر، کڑاہ کے اندر اس میں ڈال دیا، لیکن یسوع مسیح اور ان میں دوسروں میں بڑا فرق کیا تھا کہ ایک نئی شروعات ہو، ایک نئی شروعات ہو۔ کیونکہ جیسے ہمارے بزرگ داؤد کہتے ہیں کہ مینو بچ گناہ دے، وہ پیچھے اپنی ماں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، وہ پیچھے گناہ کے شروعات کی بات کرتے ہیں کہ جب اپنی منمانی کی، اپنی مرضی کی، خدا کے کلام کی نافرمانی کی۔ ہاللیلویا۔ تو یہی پریز دی لارڈ، پاک روح ہماری بڑی مدد کر رہے ہیں، پاک روح ہماری بڑی سہایتا کر رہے ہیں، تاکہ ہم کلام کے ورقوں میں جو یسوع مسیح کے بارے میں لکھا تھا، لکھا ہے اور لکھا رہے گا، تاکہ ہم پاک روح کے ذریعہ سے اس کو سمجھ سکیں۔ آج اگر کوئی اپنے ہدیے پر، اپنی کسی قربانی پر نگاہیں لگائے زندگی گزار رہا ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے، یہ اس کے لیے اپنی سوچ کے مطابق لمٹ پوائنٹ ہے، لمیٹڈ ہے۔ وہ بدن میں تو شاید بڑے فائدے اٹھائے، لیکن اس ابدی نجات سے رہ جائے گا۔ ابدی نجات کے لیے خدا نے ایک ہی چیز کو جسم دیا ہے، مجسم کیا ہے، اور وہ خدا کا کلام یسوع مسیح ہے۔ ہاللیلویا۔ یسوع مسیح کون ہے؟ بولے خدا کا کلام۔ یسوع مسیح کون ہے؟ خدا کا کلمہ۔ آج کوشش تو میری یہی ہوگی کہ پورے ٹائم پہ ہی ہم اس کو کلوز کریں، لیکن یہ موضوع، یہ عنوان کرسمس کے بارے میں جاننا یہ چھوٹا نہیں، یہ بہت بڑا ہے۔ ہماری تیاری میں فرق پڑ جاتا ہے، جب کرسمس آتا ہے ہماری تیاری میں پیسے کم تو ہماری تیاری خراب، بیماری بدن میں آ گئی تو ہماری کرسمس بھی جو بدنی ہے، جو ہماری طرف سے کرسمس ہے وہ خراب، کوئی مار دیا تو ہمارا کرسمس خراب۔ لیکن خدا نے جو انتظام کیا، موسم کیسے بھی ہو، حالات کیسے بھی ہو، وہ کبھی خراب نہیں ہو سکتا۔ ہاللیلویا۔ ہمیں خدا کے انتظام کی طرف آنا ہے میرے عزیزوں، کیونکہ خدا کا بندوبست یہ نہیں ہے کہ تو گناہ کی صورت میں اپنے شراب کے پیسوں کو، تو کاروبار کے پیسوں کو تو چندے کی صورت میں لے گیا۔ خدا کو ایسی چیزوں سے ہمارے جلال نہیں ملتا، یا ہماری نجات کا کام نہیں ہوتا، کیونکہ خدا کہتا ہے کہ تو، کلام کیا کہتا ہے کہ تو نے ان قربانیوں کو پسند نہ کیا۔ کئی بار ہمارا کاروبار جھوٹ کا کاروبار، کئی بار ہمارا کاروبار شراب کا، کئی بار ہو سکتا ہے کئی طرح کی جو نا جس کے بارے میں بائبل میں منع کیا گیا، ان چیزوں میں ہم زندگی گزار رہتے ہیں۔ خاص ہم ہدیہ اچھا دیتے ہیں، ہم چرچ کو ریگولر جوائنر ہوتے ہیں، لیکن زندگی ہماری چرچ کے بعد کی جو ہے نا وہ وہی جیسے کہ بائبل میں لکھا تھا کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا، وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ لیکن نجات کا کام رکا پڑا ہے، لیکن بدن کے قربانیوں کا کام زور شور کے ساتھ ہے۔ میرے عزیزوں، اس لیے میں آج ان زندگیوں سے، ان جانوں سے، بدنوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پلیز اپنی قربانیوں سے ہٹ کر، اپنی تفریقوں سے ہٹ کر پہلے اس قربانی کو دیکھیں جس کو خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح میں ظاہر کیا ہے۔ قربانی کو وہ پسند ہے۔ ابراہم نے کہا کہ خدا آپ تو کیا مہیا کہ نہیں؟ پھر
दाऊद हमारे बुजुर्ग ने भी एक दुआ की थी कि फजल नाल एक गीत है ना, कहते फजल नाल बख्श गुनाह सब वांगू फजल रहम का तू उते। खुदा ने सबकी दुआओं को सुना है और उन सारी दुआओं का जवाब एक खूबसूरत मुजस्मे नूर यीशु मसीह में दिया है। और फजल किसके जरिए से हुआ है? दाऊद हमारे बुजुर्ग ने कहा फजल नाल, तो फजल किसके जरिए से आया है? यीशु मसीह क्या पैगाम मिला था? फरिश्ते ने क्या कहा? तुझ पर फजल हुआ। हाँ जी, प्रेज अल्लाह, तुझ पर। आज अगर किसी की जिंदगी में यीशु नहीं है, किसी के दिल में मुजस्मे कलाम यीशु नहीं है, तो वो जितना मर्जी कहता रहे, दूसरा पाजी की हाल है और फजल है जी, और पाजी से रहो फिर बड़ा फजल है जी। और ये क्या है? ये हमारी सोच है, ये हमारा जीने का स्टाइल है। और वाकई यार तेरे ते बड़ा फजल है, कारोबार बल्ले बल्ले, धियां पुत बल्ले बल्ले, गड्डियां बल्ले बल्ले, ये सब का फजल के साथ कोई तल्लक नहीं है। फजल का तल्लक है गुनाहों से निजात। अगर हम में से किसी की जिंदगी के अंदर गुनाह कंटिन्यू है, गुनाह के कारोबार, तो फिर ये कभी नहीं हो सकता कि अंधेरा और रोशनी इकट्ठे रह लेंगे। यीशु ने अपने बदन के बारे में क्या कहा? तुम में से कौन है जो साबित करे? हालेलुया। मुकद्दस मरियम भी डरी, हमारी बुजुर्गा भी डरी, कहती नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये मुझे कोई देखेगा तो मैं तो यहूदियत के अंदर एक ऐसी औरत को संसार कर दिया जाए। लेकिन उसने फरिश्ता के जरिए से एक पैगाम पाया। खुदावंद ने उसकी आंखें खोली, उसके दिल की आंखें रोशन की कि मामला ये नहीं कि तू संसार हो जाएगी, अगर तू मेरे कलाम को दर्जा देगी, अगर तू मेरे कलाम को दर्जा देगी तो संसार होने की नौबत नहीं आएगी। कई बार हम कहते हैं भाई जी पेट भी तो लगा है ना, जे ना झूठ बोलिए तो पेट भी था। और बाइबल में क्या लिखा है? पेट खानों के लिए और खाने पेट के लिए, तो मैं इन दोनों को बर्बाद कर दूंगा। एक बर्बाद होने वाली चीज पर हम खुदा के कलाम को क्यों रद्द करें? क्यों लोगों को दूसरे लोग गलत लगते हैं? या कई बार खातमों के कलाम पर सुनाए जाने पर वो ईमान नहीं लाते। वो निगाहें किस पर लगाए हुए हैं? पादरी के बदन पर। किस पर निगाहें लगाए हुए हैं? पर पाक कौन है? उसका कलाम। पाक कौन है? आज उसके कलाम पर हमें ईमान लाना है, और वो कलाम यीशु मसीह है, वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है। हालेलुया। अब क्या पैगाम मिला है कि तुझ पर क्या हुआ है? फजल। और उस फजल का नाम क्या है? उस फजल का नाम क्या है? यीशु मसीह है। हालेलुया। और अभी हम सिर्फ एक बात की तरफ ही चल रहे हैं, और वो क्या है? तूने कुर्बानी को पसंद ना किया। लेकिन एक जबरदस्त तस्वीर कि उसने उन सब दुआओं का जवाब दिया, उन सब कुर्बानियों तक लिमिट नहीं रखी, एक कुर्बानी को पेश किया है। अब उस कुर्बानी का नाम क्या है? यीशु मसीह। उस कुर्बानी, आज हम यही चाहेंगे कि कोई भी आप में से, मुझ में, हम में से कोई रह ना जाए, खूब एंजॉय करे उसके क्रिसमस को। लेकिन ये नहीं कि कपड़े अच्छे हैं, हो सकता है अब जैसे मेरे वो बालों का स्टाइल बनाना था, मैंने कहा यार काले जैसा ना बनाना, मैंने कहा यार काले जैसा ना बनाना, एक नया स्टाइल बनाना। इसी तरह से खुदा भी हमें गुजरी हुई जिंदगी की तरह नहीं रखना चाहते, एक नई शुरुआत। हालेलुया। और उस नई शुरुआत का नाम ये नहीं कि फिर अपनी अकल पर कुछ नया प्लान कर ले। प्लान मौजूद है, और उस प्लान का नाम क्या है? यीशु मसीह। उस प्लान का नाम क्या है? खुदा का बंदोबस्त। आए हम दूसरी बात को देखेंगे। पहली हम क्या? तूने कुर्बानी को पसंद ना किया। और दूसरी बात क्या है? तूने मेरे लिए एक बदन, तूने मेरे लिए एक, ये किसने कहा? सब थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए प्लीज, दरखास्त है प्लीज, आप एक बार उठ के आगे आ जाएं।
ज्यादा आगे आ जाए, पीछे बिल्कुल आगे जुड़ जाए साथ। रिक्वेस्ट है प्लीज, अब कहना ना पड़े, आप इतना आगे हो कि आपके आगे जगह ना हो। समझ ले आपके एक अगर कदम भी है तो वो पीछे कोई ना कोई भाई बैठ जाएगा। प्लीज प्लीज यहाँ जुड़े, इधर को मुंह करें, साथ हो जाए प्लीज। हालेलुया। हालेलुया। तो आज के कलाम का अनुमान क्या है? एक नई शुरुआत। हालेलुया। हालेलुया। या खुदा का बंदोबस्त, या खुदा की मर्जी। हालेलुया। हालेलुया। तो पहली बात इसमें हम सीख रहे थे कुर्बानी को पसंद, और हम दूसरी बात की तरफ आते हैं, बेशक कुर्बानी को पसंद ना किया। और दूसरी बात की तरफ, पर वो कौन सी कुर्बानी है जिसको पसंद ना किया? हमारी अपनी अकल की, हमारे जैसे कि लोग हैकल के अंदर क्या लेकर आते थे? अपने चढ़ावे लेकर आते थे, हदिया लेकर आते थे। मैंने आपको कहा ना कि कई तरह के आपको बाइबल में वाकयात मिलेंगे। लोग खता की कुर्बानी, माफी की कुर्बानी और भी कुर्बानियों के लिए अपने अपने नजराने लेकर आते थे, अपने अपने तरीके। बेशक खुदा ने उनसे मांगी वो कुर्बानियां, या वो खुदा की नजर करते थे, लेकिन आज जिस कुर्बानी की तरफ मुझे और आपको खुदा इशारा दे रहे हैं खुदावन, और वो क्या है? उसका बेटा यीशु मसीह। हालेलुया। दूसरी, हम इसे की तरफ टाइम को भी हमने रखना है सामने। दूसरी बात क्या है? तूने मेरे लिए एक बदन तैयार किया। पहला बदन जो तैयार किया था वो कहां से तैयार किया था? मट्टी से। मट्टी से, खाक से। इसीलिए तो जब कोई जनाजा होता है तो क्या कहते हैं? तू खाक से, तू बना पैदा हुआ, तू खाकी में। लेकिन नए में ऐसा नहीं है। मेरी दुआ है पादरी साहबान भी जो जनाजा करते हैं, ऑनलाइन भी बड़े लोग जो है इस मैसेज को यूट्यूब पर सब देखेंगे, पर हम वहां से छलांग लगाकर एक उस आदम में आ जाए जिसका नाम इब्ने आदम है। वो खाक में नहीं है, बल्कि कहां पर है? बाप की तरफ। तो उसने भी कहा, और क्या? ऐ बनी आदम लौटा, ऐ बनी आदम। और कहां लौटा? खाक में। बनी आदम को बुलाने वाला खुद कहां है? आसमान पर। मैं और आप कहां से मखलूक किए गए हैं? बदन बेशक खाक से लिया गया, लेकिन जो मेरे अंदर जान का, रूह का जो मटीरियल डाला, वो कहां का है? आसमान का। इसीलिए तो बाइबल में लिखा है, ईमानदार मर जाता मगर उसकी याद नहीं मिटती। हालेलुया। ये जो बदन मेरे लिए और आपके लिए खुदा ने मुजस्सम किया है, उस बदन का बाकी बदनों से जो कि दुनिया से लिए गए हैं, खाक से लिए गए हैं, ये एक जवाब है दाऊद और हमारे बुजुर्ग अब्राहम की उस दुआ का, रिक्वेस्ट का कि खुदा आप मुहैया करेगा। मैनू विच गुनाह दे जम्या मेरी। अगर हम ऐसे कलाम तक महदूद है, बेशक बदन में तो हम बल्ले बल्ले जिंदगी गुजारेंगे, लेकिन हम आसमान वाली जिंदगी में खुदा की बादशाह के शानी फर्जंद नहीं हो सकते। हालेलुया। हालेलुया। एक बदन मुजस्सम हुआ है, एक बदन जो है ना वो बनाया गया है। पुराना बदन कहां से बनाया गया था? फिर से बोले, रिपीट करें ताकि आप भी मेरे साथ जुड़े रहे। पहला जो बदन जिसमें से हम सारी दुनिया पैदा हुए हैं, वो बदन कहां से लिया गया था? मिट्टी से। मिट्टी से, खाक से। और जब वो मरता है तो फिर कहां चला जाता है? मिट्टी में। लेकिन जो खुदा के बेटे, जो कलमा है, कलमुल्ला है, जो कलामुल्ला है, जो कलमा है खुदा का, रूह अल्लाह है, जब उसको जिस्म दिया गया तो वो कहां से लिया गया? मुकद्दस मरियम डरती है कि मुझे मार देंगे, मैं संसार कर दी जाऊंगी, तो खुदा ने फरिश्ता के जरिया से कहा, नहीं नहीं नहीं, जिस कलाम को तू अपने अंदर पैदा करने वाली है, रखने वाली है, मुजस्सम होने वाली है, अब उस बदन को अपने अंदर जिस्म का कबूल करने वाली है, वो ऐसी नौबत लाएगा कि तू संसार नहीं हो जाएगी, बल्कि अब से लेकर हर जमाने के लोग तुझे कहेंगे। हालेलुया। कलाम खुदा
मुजस्मे रूप यीशु मसीह खुदा का वो कलमा है, वो रूह अल्लाह है जो कोई अपने अंदर रख लेता है। संसार खाक के अंदर है, उसका बदन तो खाक में जाएगा, लेकिन जो यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, जहां यीशु है वो भी, जैसे उसकी कब्र खुल गई, क्या गलने सड़ने की नौबत है? गलने सड़ने की नौबत है। आज हम अपनी सोच के अंदर उसके बेटा को ले ले, क्योंकि उसने एक जिस्म लिया है। और एक और भी बात, यीशु का, सभी का ध्यान करें प्लीज, देखने से भी बड़ा फर्क पड़ता है। यीशु का जिस्म में आना क्यों लाज़िम व मुल्ज़म हो गया? ताकि जो मेरा और आपका जमीन पर जो बदन है, जिसके ऊपर वो लानत है, तो खाक में जाएगा। हम जैसे यीशु मसीह ने अपने बदन में जमीन पर कितने साल जिंदगी गुजारी यीशु मसीह ने? 33.5। और उसके अंदर एक ही बात, दावत एक ही जो है ना, वो बात जाहिर होती है कि तुम में से कौन है जो मुझ में, वो बात करते हैं यीशु मसीह, काम करते हैं बड़े बड़े, पर लोग सवाल करते हैं तेरे पास इख्तियार क्या है? तुझे किसी ने वजीर आजम जी बनाया, तुझे किसी ने कोई ना, तेरा कोई हमें कुछ नजर नहीं आता है। वो सिर्फ बदन को क्या देखते थे कि यूसुफ का बेटा या मुकद्दसा मरियम से पैदा हुआ, लेकिन खुदा, याद रखिएगा, जब मेरे और आपके बदन में खुदा का कलाम होगा तो लोग कहेंगे कि यार तेरी तो ट्रेनिंग भी नहीं है, तू आया तो ऐसी कंपनी हमारी बड़ी बल्ले बल्ले हो गई है, तूने जब से जो है ना वो हम तेरे साथ जुड़े हैं, या तेरा तू हमारे खानदान में आया, हमारे मामला की है। याद रखे, खुदा ने अपने सब नामों से ऊपर ऊंचा दर्जा किसको दिया? बोले कलाम को। अगर कोई खादम, अगर कोई शख्स हमारी जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है, उसके अंदर कलाम से पहले दुनियादारी को दर्जा है, तो वो आपकी जिंदगी में आपका रसवाई का सबब हो सकता है। पर अब से लेकर हर जमाने के लोग मुबारक कहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। मुकद्दसा मरियम को यह एहसास किसकी तरफ से मिला है? हमारी बुजुर्गों को हर जमाने का मुबारक होने का इख्तियार किसकी जरिया से मिला है? बोले मुजस्मे कलाम खुदा के बेटे यीशु मसीह। आज मैं और आप भी खुदा के इस मुजस्सम होने को, खुदा के कलाम के इस मुजस्सम होने को समझे कि वो इसीलिए मुजस्सम हुआ कि पुरानी चीजें, अब ये नहीं कि हमने क्रिसमस तो आज मना लिया, लेकिन कल का सूरज आज की शाम जो है ना फिर से आए तो मामला कोई जिन्हें लाया गली, ये खतरनाक हालत है। जिस्म का रूप खुदा ने उस अपने प्यारे को, हमारे निजात दहिंदा यीशु को दिया, लेकिन वो बदन में आकर किसी की मर्जी नहीं बल्कि किसकी मर्जी पूरी की है? बाप की। हालेलुया। और आपको पता है, अगर वो मेरे और आपके बदन को देखे तो हम एक पल भी इस जमीन पर भी उसकी दी हुई जिंदगी, उसका दिया हुआ वक्त हम गुजार सकते हैं, क्योंकि उसमें गुनाह नहीं है। अगर खुदा आपको और मुझे अपनी निगाह से मेरे और आपके कामों के मुताबिक देखे तो फिर वो शिफायत भी जाया होती है जो बाप की दाहिनी तरफ खुदा का बेटा यीशु मसीह कर रहा है कि अब आप इसको माफ कर, अब आप इसको माफ कर, मैंने इसके लिए जन्म लिया, मैंने इसके लिए धरती पे किया हूं। इसका ये मतलब नहीं कि हम सताने की हद कर दें और इसी सताए जाने में एक मौत आ जाए और सीधा उठाकर कहां डाल दिया जाए? जहां रोना और दांतों का पीसना। यीशु मसीह के पैदा होने को ये मत समझे कि हम अपनी मर्जी और अपनी ख्वाहिशात में जिए, ऐसा हरगिज़ नहीं है। जिस्म का रूप लेकर भी वो सबके दरमियान को, अक्सर लोग कहते थे मेरा उस्ताद ठीक नहीं है, तुम्हारा उस्ताद है, वो किनके साथ उठता बैठता है? हाँ जी, आज भी हो सकता है हम में ये आवाजें उठती हो और पता है साहब तो जिदा को भगत है, क्योंकि वो किसको देख रहे होते हैं? वो पादरी के बदन को, वो उस कलाम को नहीं देख रहे होते जो खुदा ने उस जिस्म के अंदर रखा था, शराबियों के अंदर गया। जैसे हमारे बुजुर्ग पालूस भी कहते हैं, मैं यहूदियों में गया तो, रोमियों में गया तो,
कहता मैं जहां गया मैं सब कुछ बना, लेकिन एक साथ मेरे अंदर कायम है, मैं दुनियादार नहीं बना, बल्कि जिसने सारी दुनिया को पैदा किया उसने अपने बेटे यीशु मसीह को अपने उस खादम के अंदर भी, पौलुस के अंदर भी रखा, और वो ये ऐलान करते हैं कि मैं जिंदा ना रहा। कौन जिंदा है मुझ में। मसीह। आज चेक करें कि ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई शादी भी आया है तो कोई ठुक्के का माहौल आया है, कोई गेड़े शेड़े का गाना शाना लगा है, ओए आजा पुत्रा दे ब्याह के लिए रोज होते हैं, ओए आजा फिर भी तेरा भतीजा ही, तेरा दोता ही पोता ही, कुछ भी खिंच खुच के लोग ले जाते हैं। यीशु मसीह जहां भी गया पर उन जैसा नहीं हो गया, उनको अपने जैसा कर लिया। यह है उसकी शान, यह है उसकी जिंदगी का जिस्म के अंदर रहना। आज अगर हम यीशु को पूजने की तो हद कर देते हैं, यीशु को मानने की तो हद कर देते हैं कि वो खुदा का नूर है, लेकिन जहां जहां गए हैं, जिन जिन के साथ दोस्ती है, कई बार इज्जत रखने की खातिर, कई बार अपने बदन की बल्ले बल्ले के लिए हम उन लोगों के साथ मेल मिलाप कर लेते हैं। इसलिए मेरी आपसे दरखास्त है, मेरी आपसे बाप का खादम होने के लिए ये मिन्नत है कि उसने मुझे और आपको जीने का ढंग बताया ही नहीं है, बल्कि मुजस्सम होकर सिखा दिया है, समझा दिया है। अब अगर तू कहना नहीं जी कोई गल नहीं, इंसान ही आ, कोई गल नहीं, तो चले इधर आ जाए। इंसान ही है तो इंसान को जब खुदा ने खुद बनाया, उसके अंदर अपना रूह डाला, तो वो गुनाहगार था, वो अपनी मर्जी वाला था, कहे नहीं, लानत थी उसके ऊपर, कुछ भी ऐसी बात नहीं थी, बल्कि वो किस जैसा था। करे तर्जुमा, पहला इंसान, पहला आदम, इससे पहले कि वो अपनी मर्जी करता या अपनी बीवी की मर्जी में जाता या उस शैतान लूसीफर की मर्जी को पूरा करता, खुदा ने जब इंसान को बनाया तो वो गुनाहगार था। ये खुदा के हुजूर रहने का एक अपना असूल है। अगर आप और मैं चाहते हैं कि हम खुदा के हुजूर जाएं, हम खुदा के साथ रहें, तो ये बंदोबस्त मौजूद है कि तू उसका नाम यीशु रखना, वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से। अगर कुंवारी मुकद्दसा मरियम के जिस्म में आकर वो उसको अजली यानी कि अब से हर जमाने में मुबारक, आमीन, आमीन। तो आए आज मेरे लिए और आपके लिए भी एक जिस्म मौजूद है। बेशक हम इस धरती पे रह रहे हैं, पर एक जिस्म मेरे लिए और आपके लिए एक साइन है, और वो किसका जिस्म है? ऐसे बोलते हैं, पता नहीं इतना छोटा सा नाम है वो किसका नाम है? यीशु। आप सच्चे को मानने वाले हो, आप वादों के वारिस, मुजस्मे कलाम, जिसने मिलते ही पहली मुलाकात में क्या कह दिया? जो मैं हूं वो तू है। पहली मुलाकात में कोई एकदम सीट पे बिठाता? ये उसकी एक शान है कि कोई उसके लिए थोड़ा सा भी दिल खोले तो बाकी वो कहता है तेरी डेंटिंग पेंटिंग मैं सेट कर दूंगा। जब तूने कह दिया कि मैं नहीं तू है, तो मैं तेरी सारी जिंदगी को अपने जैसे कर दूंगा। तो अगर तेरा ये कहना कोई नहीं, इंसान कोई नहीं, फिर राज के रख, ना किसी ताकत ने तुझे छुड़ाना है नशे से, ना किसी ताकत ने तुझे बचाना है उस खाक में जाने से। जहन्नम खुदा ने बनाई है। जहन्नम किसने बनाई है? दोज़ख किसने बनाई है? पर वो किसके लिए बनाई है? अबलीस के लिए और उसके फरिश्तों के लिए। और अबलीस भी भरपूर काम कर रहा है कि हम कौन सी जिंदगी गुजारे। पहले दिन शिकार कौन हुए थे? हमारे बुजुर्ग आदम, और आज भी वो शिकार कर रहा है ताकि वो मेरी और आपकी निगाहें मुजस्मे कलाम यीशु से हटाकर इस सोच पर लगा दे कोई नहीं, इंसान ही कोई नहीं, दूजियों के नाल ही और कोई नहीं जिथे हो जाएंगे असी भी। ऐसा नहीं है। खुदा ने एक फर्क पैदा किया है और वो एक नई शुरुआत है, और उसका बेटा मुजस्मे कलाम यीशु मसीह है। आज अगर कोई फिर अपनी मर्जी की जिंदगी या फिर उसी जिस्म की ख्वाहिशात वाली जिंदगी में रहना चाहता है, तो जैसे उस वक्त देखने में क्या था, वो फल देखने में क्या था? खुशनुमा। और जब चखा तो खाने में क्या हुआ?
انہیں کیا مزیدار کام نہیں. آجا ہیریا, آجا سونیا, اوے آجا میرے نال دیا. یاد رکھے بیوی کی بات ضرور سنے, شوہر بیوی کی بات ضرور سنے, بیوی شوہر کی ضرور سنے, لیکن جہاں پر بات آ جائے جسم میں رہتے ہوئے اس کے کلام کی نافرمانی کی, اسے کہیں سوری, سوری تو مجھے نہیں لے جا سکتی. کیونکہ بائبل میں ایک ایسا بھی جوڑا ہے جنہوں نے جھوٹ بولا, زمین جائیداد بیچی اور ایکا کیا. میاں بیوی کا ایکا کرنا بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ یاد رکھے کہ ایسا ایکا تو نہیں کر دیا کہ اس نے خدا کے کلام کو رد کر دیا. میں ایسی خوبصورت دلہن تو نہیں بن رہی جس کے اندر میں دنیا کو تو خوبصورت لگوں, لیکن جو زیور جو سنگار اس کے کلام کا, میں نے اس کو ہی رد کر دیا. اس میں کوئی لباس بھی ہو سکتا ہے, اس میں میرا اور آپ کا کوئی بھی انداز ہو سکتا ہے, لیکن خدا نے مجھے اور آپ کو ایک زبردست تصویر دیا ہے کہ زمین پر رہنے کے لیے, جسم میں رہنے کے لیے ایک ہی جسم جس نے سنایا ہی نہیں ہے, سمجھایا ہی نہیں ہے, بلکہ سکھا دیا ہے, جینا سکھا دیا ہے. اور اس جسم کا نام بولے کیا ہے؟ اتنا آہستہ آہستہ بولتے ہیں جیسے پتہ نہیں اس جانتے ہی نہیں ہے. اس جسم کا نام کیا ہے؟ او بہنیں, اس جسم کا نام کیا ہے؟ تو اس کا نام یسوع رکھنا, کیونکہ وہ ایک کام کرے گا, ایک کام کرے گا کہ وہ تجھے مبارک حالی دے گا. جتنا مرضی ایک دوسرے کو مبارک کہے, پر مقدسہ مریم کو کیا کہا گیا کہ تو مبارک ہے, کیونکہ تو نے اپنا جسم کس کو دیا ہے؟ اس کلام کو جو تجھے بے شک تو اس دھرتی پر ستائی جائے, تیرے اوپر الزام لگے, تجھے سنسار کرنے کی باتیں کی جائے, لیکن جب تو نے اپنا جسم اس کلام کو دے دیا تو ایسی نوبت ہاللیلویا. کتنے لوگ اس جسم کو, اپنے بدن کو اس کلام کے لیے دینا چاہتے ہیں جس کا نام خدا کا کلمہ یسوع مسیح ہے. تو یہ دوسری بات ہم سیکھ رہے ہیں کہ تو نے میرے لیے ایک بدن تیار کیا, اور اس تو بات وہیں سے ہو رہی تھی, پہلے بدن تیار کیا وہ زمین سے, دوسرا بدن بے شک ایک بدن کے اندر تیار کیا گیا ہے, لیکن تیاری کہاں کیا ہے؟ اوپر کی, آسمان کی. کتنے لوگ چاہتے ہیں میں بھی آسمان پر جانا چاہتا ہوں؟ ہاللیلویا. ایک گیت اگر آپ نے سنا ہو تو ایک گیت ہے, سچے سونے نال اٹھے بڑیاں نے سرکا. سچے سونے نال دھرتی تے سونا کدی مہنگا تے کدی کسی ملک چ اسی منگا لیں, اتوں سستا ہے اتوں منگا لو یار, ایتھے اج کل مہنگا ہے. پر جو وہاں سونا آسمان پر ہے سڑکے, ہاللیلویا, کیونکہ وہاں کلام ہی کلام ہے. یہ بدن عارضی ہے, اس لیے بدن کا سونا بھی, اس کی قیمتیں اپ ڈاؤن ہوتی رہیں گی, لیکن جس سونے کی سڑکیں آسمان پر ہے وہ مجسم ہو کر زمین پر آیا, اور اس کا نام یسوع ہے. اسے اپنی آنکھوں میں ڈال لے, اسے اپنے کانوں میں ڈال لے, اسے اپنے منہ میں ڈال لے. پھر جینے کے لیے یہ نہیں کہ گناہ پاک 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 ہے. اگر یسوع مسیح خدا کا کلام, مجسم کلام ہمارے اندر نہیں ہے, آنکھوں میں نہیں ہے, کانوں میں نہیں ہے, منہ میں نہیں ہے, تو پھر ہم پیر پر جکتے آ گیا گیڑا تو پھر ہوتے دیا گے, گیڑا دلاواں گے پھیرا, ٹھیک ہے, پھر اس بدن کی مرضی پوری ہوگی. اب یسوع مسیح نے بدن کی مرضی کیوں نہیں پوری کی؟ بدن کی مرضی کیا تھی؟ جنہیں لایا گلی. تیرا استاد کیا کن کے ساتھ کھاتا ہے؟ تیرا استاد کیسے اٹھنا بیٹھنا اس کا 100 الزام تھے, لیکن اس کے اندر ایک نور تھا کہ وہ کہتا کہ مجھ میں کون ہے؟ باپ. اسی کی مرضی, اور اس کی مرضی نے پھر اسے کیا نام دیا؟ وہ ناموں سے جو سب ناموں سے پہلے جتنے بھی آئے ہیں وہ کس وجہ سے رہ گئے؟ قربانیاں ان کی بیکار نہیں تھی, قربانیاں ان کی ضائع نہیں تھی, لیکن ایک ایسی قربانی کا بندوبست خدا ہی کر سکتا تھا جس کے اندر نسلی گناہ نہ ہو, جس کے اندر بیک گراؤنڈ پہ گناہ نہ ہو, جس کی زندگی کے اندر یہ نہ ہو کہ میں اوروں سے بہتر نظر آؤں, میں اس سے بہتر نظر آؤں. ہم شاید اس پادری کی تلاش میں رہتے ہیں جو بڑا ہمیں بہتر نظر آئے,
पर बेहतर नजर आए तो एक ही पर निगाह कर ले और वो उसका कलाम है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का इंतजाम, नई शुरुआत। तो इसमें दूसरी बात हमने क्या सीखी है? टाइम पूरा हो गया लेकिन दूसरी बात तक पहुंचे हैं कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया और वो बदन का नाम क्या है? हालेलुया। कितने लोग बदन में भी जबरदस्त जिंदगी गुजारना चाहते हैं, बदन में भी कामयाब, ताकि जैसे मुकद्दसा मरियम बदन में रही लेकिन उसको एक एहसास मिल गया कि अब से लेकर हर जमाना, मुकद्दसा मरियम से लेकर अब तक जमाने आए हैं कि नहीं, पर उसकी मुबारक खाली को मुतासर किया नहीं, क्योंकि उसकी मुबारक खाली का दारोमदार किस पर था? यीशु मसीह पर, खुदा के कलाम पर। आज मेरी आपसे कलीसिया न्यू लाइफ चर्च ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद पाकिस्तान, मेरी आपसे दरखास्त है बाप का खादिम होते हुए, आप मुझे जानते हैं, बेशक बैकग्राउंड नहीं जानते, ये बदन 2016 के अंदर टोटे टोटे होने के बाद दोबारा सिलाई किया गया है, हड्डियों तक के अंदर राड डाले गए, चिपों क्लिपों से मेरा फेस, मेरा सर कंघी बनाई गई, लेकिन उसके बाद उसने कहा अब तेरा तरीका। एक लेडी ने आकर कहा जब खून के रेड सेल व्हाइट सेल भी जाया हो गए तो उस बेटी ने आकर कहा, साजदा उसका नाम, कहने लगी कि अब जो ये जिंदगी गुजारेगा माँ का खून या बाप का जो भी था वो सारा जाता रहा, अब ये यीशु के खून वाली जिंदगी गुजारेगा, ये यीशु के कलाम वाली जिंदगी गुजारेगा। तो मैं भी आपकी तरह बदन में हूं, और जब तक हम बदन में इसमें उतार चढ़ाओ होते रहते हैं, लेकिन जहां बात आ जाए खुदा के कलाम को रद्द करने की, हम इस बदन की नहीं सुनेंगे। जहां बात आ जाए इस कलाम से मुनहरिफ होने की, हम इस बदन की पैरवी नहीं करेंगे, क्योंकि यीशु ने भी ऐसा ही किया। लोगों की सुनता था मेरे बारे में, शागिर्दों से भी क्या कहा मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं, और लोग ये कहते हैं। उसने कहा सोचो, छोड़ो, तुम क्या कहते हो, तुम मेरे बारे में कैसी सोच रखते हो। आज प्लीज दुनिया यीशु के बारे में कैसा भी ख्याल सोच रखती है, लेकिन आज मैं और आप चेक करें कि वो मुजस्सम हुआ, एक जिस्म के रूप में आया, ताकि मेरे और आपके जिस्म की वजह से कोई मसीह के खिलाफ बात ना करे, मेरे और आपके जिस्म की बातों की वजह से मेरा चर्च ना छूट जाए। सो मेरी आपसे दरखास्त है, जैसा मेरी जिंदगी में ये पहला संडे जो कल गुजरा है, ऐसा हुआ है कि जितने थोड़े से लोग थे, शायद हम किस तैयारी में थे? बोले बदन की। हम कौन सी तैयारी में थे? बाकी अदन में। अभी इतनी बातें हैं, टाइम हमारा खत्म हो गया। आपको पता है जब यीशु मसीह ने कहा कि अब्राहम, इससे पहले कि अब्राहम था पैदा हुआ, मैं हूं। हालेलुया। पर उसकी तस्वीर थोड़ी सी हम एक झलक देख लेते हैं। बागी अदन के अंदर कितने दरख्त थे? बोले 2। कितने दरख्त थे? 2। एक दरख्त वो जो नेक और बद की पहचान का दरख्त था, और एक वो दरख्त जिसका नाम हयात का दरख्त। क्या नाम है उसका? अब यीशु मसीह ने आते ही पहली तबलीग के अंदर, पहले प्रचार के अंदर क्या कहा? जिंदगी का दरख्त है। हालेलुया। आते इसको पहले बताया, तुम भूल गए, नबी आते रहे, बड़ी बड़ी कुर्बानियां होती रही, लेकिन जो दरख्त असल से अब तक मौजूद है, जिंदगी का दरख्त, वो मैं हूं। हालेलुया। इससे भी आगे और खुशी मनाए। पहली ही मुलाकात में इसने क्या दिया? जब तुमने मैंने तुम्हें चुन लिया, तो तुम मेरा यकीन कर रहे हो कि हम सही चुने गए हैं, तो अब तुम क्या हो? उस दरख्त की। हालेलुया। कोई डिग्री मांगी? एक ही डिग्री काफी थी कि इन्होंने मेरे चुनाव पर भरोसा किया है। इन्होंने मैंने इनको सिलेक्ट किया, मैंने इनका नाम लेकर इनको बुलाया, इन्होंने रद्द नहीं किया। कोई मच्छियां पकड़ने वाला था, वो छोड़ के आ गया। कोई क्या काम करता था, वो छोड़ के आ गया। जब इन्होंने मेरे पीछे आना कबूल किया, तब कोई डिग्री नहीं है कि डिग्री काफी है। जो यीशु को कबूल करे वो आसमान की बादशाही का वारिस है।
हालेलुया। जितनों ने यीशु मसीह को कबूल किया, यीशु मसीह ने उन्हें कौन सा? खुदा के फर्जंद है। हालेलुया। जो खुद खुदा का बेटा है वही मुझे और आपको भी, जो यीशु को कबूल करते हैं, आसमान की फर्जंदियत के अंदर दाखिल कर सकता है, शामिल कर सकता है। लगेगी उथे थोड़ा पंजाबी टच भी दिए ताकि थोड़ा मुस्कुराओगे। लगेगी उथे लंबी कतार, लगेगी उथे तो जाना पेगा वारो, जाना पेगा वारो। करना नहीं जे किसे उधार, करना नहीं जे ओ बिन टिकटों सब गड्डियों बाहर। अयूब साहब आ बिन टिकटों सब ते टिकट होणगे कोल जिन्ना दे फब गड्डी च बैठ, टिकट होणगे कोल जिन्ना दे ओ जेड़े आज भी पीछे ने ओ कल भी पीछे। आज मौका है, आज वक्त है कि उस फर्जंदियत को, उस खुदा के मुजस्मे नूरे खुदा यीशु को कबूल कर ले, ताकि मर भी जाए जैसे उसकी कब्र खुल गई, मेरी और आपकी कब्रें भी खुल जाएंगी। हालेलुया। किसी बात की तरफ जाना चाहता हूं लेकिन प्रेज हालेलुया। और तीसरी और आखिरी बात, ताकि मैं तेरी मर्जी को। जिस्म के आने का मकसद क्या था? खुदा का अपने बेटे को, कलामे खुदा को मुजस्सम करने का एक ही मकसद था, ताकि जो जिस्म अपनी मर्जी कर रहे हैं, खुदा के लिए बेशक वक्त गुजार रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बातों में जा रहे हैं, इब्लीस नहीं रोकता, शैतान नहीं रोकता। वो कहता है कर इबादत, मैं भी तेरे से ज्यादा परस्तिश करता हूं। शैतान भी खुदा की परस्तिश करता है, शैतान भी खुदा को मानता है, लेकिन जहां बात आ जाए उसकी मर्जी को पूरा करना, कहना ना मर्जी मैं अपनी पूरी करूंगा, तख्त मैं अपनी सजावांगा, दोजख मैं अपनी भरांगा, जन्नत मैं अपनी भरांगा। इसीलिए खुदा को एक मुजस्मे नूर फर्जंदियत खुदाबंदी अपना बेटा यीशु भेजना पड़ा, ताकि हम जो जिस्म में जिंदगी गुजार रहे हैं, अपने जिस्म की कामों की वजह से दोजख में ना चले जाएं। अपने जिस्म के, कई बार हमारे दोस्त में बड़े बड़े अच्छे दोस्त हम बनाते हैं, मेरा दोस्त देख बड़ा सोना ही, क्या वो सोना सिर्फ बदन का ही है या उसके अंदर सोना भी है? सारिया तो सोना यीशु नासरी कमाल दा, नासरी कमाल, वो सोनिया तो सोना यीशु नासरी कमाल दा, ओ दुनिया दे कोई नहीं जे, दुनिया दे कोई नहीं जे, नासरी दे नाल दा। सुने मेरे अजीजों, इस जिस्म को हम अमेरिका लेके जाना चाहते हैं, इस जिस्म को हम डिग्रियां दिलवाना चाहते हैं, पर दुआ करता हूं एक डिग्री से कहीं हम रह ना जाए जो आसमान पर लेके जाना चाहती है, और उस डिग्री का नाम मुजस्मे कलाम यीशु मसीह है। हालेलुया। तो तीसरी बात क्या है? ताकि तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो। मेरी आपसे मिन्नत है, मेरी दरखास्त है, टाइम पूरा हुआ कि आए दोस्तों, आज इस मुजस्मे नूर यीशु को अपनी जिंदगी के अंदर दर्जा दे, ताकि ऐसा ना हो कि जिस्म में तो बड़ी बल्ले बल्ले। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, एक बरकत और एक अजर है, प्लीज गौर करिएगा। आखिरी बात और हमारा सलाम। कलीसिया, एक बरकत और एक अजर जो है ये टेम्परेरी है, ये आर्जी है, और जब कोई इंसान मरता है उसका वो जो उसने पाया होता बेशक देता खुदा ही है। अब अगर आप इंसान की किताब पढ़े तो इंसान के अंदर ये बात लिखी है, और उसके दाहिने हाथ में क्या है? उम्र की, और उसके बाएं हाथ में इज्जत और दौलत। आप इज्जत और दौलत तो आप खुदा से पा लेंगे, वो देगा, उसका वादा है,
मैं तुझे बरामद करूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा। लेकिन जो बरकत है वो उसने मेरे और आपके चंदे के साथ नहीं जोड़ी, वो मेरी और आपकी अकल ताकत के साथ नहीं जोड़ी, बल्कि वो उसने अपने कलाम के साथ जोड़ी है। यहाँ प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर यहाँ कोई भी अपनी शख्स जिंदगी में ये कहे जी शुक्र है खुदा का, उसने बड़ी बरकत दी है, उसने बड़ी, वो भला ये क्यों कह रहा होता है? वो अपने बदन की चीजों की वजह से, मेरे पास बेटे हैं, मेरे पास बेटियां हैं, मेरे पास सेहतमंद जिस्म है, मेरे पास कारोबार बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं, ये सारे मटेरियल का तल्लुक किसके साथ है? अजर के साथ। किसके साथ है? ये गुनाहगारों के पास भी है, ये शराबी लोगों के पास भी है, बेटे बेटियां, पैसा, अच्छा बदन, लेकिन जो बरकत है वो एक ही है, और वो उसका कलाम है जो मुजस्सम होकर मेरे और आपके दरमियान आया है। और खुदा ने, फरिश्ता ने उसका नाम क्या रखा? आज अगर किसी के पास यीशु नहीं है, उसका कलाम उसकी जिंदगी में नहीं है, तो वो जितना मर्जी कहता रहे बरकत है बरकत है, ये बरकत नहीं है, दुनिया की शान और शौकत है जिसके बारे में लिखा है जाती रहेगी। ज़बानें हो तो ठीक है, सब कुछ मखूफ हो जाएगा, लेकिन एक चीज अबदी है, असली है, और वो यीशु मसीह है। खुदा का कलमा, खुदा का कलाम, वो यीशु मसीह है। कितने लोग असली और अबदी चीज लेके जाना चाहते हैं कि आज मैं मर भी जाऊं तो मुझे परवाह नहीं है, जैसे पौलुस कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे आज भी याद है, गाड़ी के अंदर पहले प्रचार में एक गाड़ी खुदा ने मुझे दी, तो लाहौर में पंजाब में बड़ा रश था, तो मैंने ऐसे ही अपने मुंह से बदनी एतबार से बोल दिया, पास्टर मेरे साथ था, पास्टर आसफ, तो मैंने कहा खुदावंद तेरी धरती पे रश बड़ा हो गया, उनका बुलाई है, तेरी धरती बहुत रश हो गया होता। ये किसी बदन की सोच हो सकती है, खुदा ने जो धरती बनाई है उसकी मर्जी यही कि तू ना ये सोच क्या इस कलाम से तू बचा, तेरे भाई बच गए, क्या तू इस कलाम से बचा है, तेरे साथ तेरे मोहल्ले के लोग बच गए, तेरे मुल्क के लोग बच गए, अगर नहीं तो मैं तेरा भी इंतजार करूंगा और उनका भी इंतजार करूंगा। इससे पहले कि उम्र जाती रहे, आए आज इस पैगाम पर ईमान लाए कि उसका मुजस्सम होने का एक ही मकसद है कि जिस्म में अपनी मर्जी की जिंदगी ना गुजारे, बल्कि आप इसको 40 सबूर को भी पढ़ेंगे 36 से 8वीं आयत पर, वहां पर भी ये लिखा है ताकि मैं तेरी मर्जी पूरी करूं। और ये कौन है? यीशु मसीह। किसके जरिए से बात कर रहे हैं? हमारे बुजुर्ग दाऊद के जरिए से। अब ज़बूर कितना हमारी पैदाइश से तो दूर कहीं, और फिर भी वहां पे भी यीशु मसीह मौजूद है। अब मैंने आपको बताया बागी अदन के अंदर कितने दरख्त हैं? एक का नाम क्या है? नेकोबाद की, और वो कौन है? शरीयत। वो कौन है? गुनाह की पहचान कौन देता है? ये सारा कलाम शरीयत है। यीशु मसीह भी शरीयत को पूरा करने आए, हालेलुया, खत्म करने। लेकिन अब पूरी किसमें हुई है? यीशु मसीह में। शरीयत पूरी किसमें हुई है? अगर यीशु पुराने अहदनामे को समझने के लिए अंजीलों को पढ़ना बहुत जरूरी है, अंजीलों को समझने के लिए खतों को पढ़ना बहुत जरूरी है। प्लीज ध्यान करिएगा, पुराने अहदनामे को जहां जहां यीशु मसीह नबियों से बात करते हैं, जाहिर हुए हैं, उस यीशु को देखने के लिए किसको समझना जरूरी है? अंजीलों को। तो अंजीलों को समझने के लिए खतों को पढ़ना, सुनना, समझना बहुत जरूरी है। और आज अगर हम चाहते हैं जमीन पर बाबरकत जिंदगी गुजारे, तो उसके बेटे मुजस्समे कलाम यीशु को कबूल करना बहुत जरूरी है। आए अपने कदमों पर खड़े हो जाए, आए अपने कदमों पर खड़े हो जाए कि यीशु मसीह तू ना आता, तू ना होता तो मेरा क्या होता। हालेलुया। आए सब अपनी आंखें बंद करें, चलते जाए। हालेलुया, हालेलुया। आए प्रेज द लॉर्ड। सब अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथ उठाएं और आज अपनी मर्जी को रद्द करें, अपनी मर्जी को कहेंगे गेट आउट। तूने कौन कौन से रूप में आकर, ऐ शैतान, जैसे तूने उस वक्त सांप का बदल लिया, आज तूने किस किस बदन में आकर
मुझे खुदा के कलाम से दूर कर दिया। दुआ करना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया। सब अपनी आंखें बंद करें। अब अगर आप अपनी आंखें खोलेंगे तो आप इस कलाम के जोर को जो हासिल किया है आप उसको रद्द कर रहे होंगे। अपनी आंखें बंद करें, अपनी आंखें बंद करें और दुआ करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए इस इकरार के साथ मेरे अजीजों आप जुड़ जाए। जी नबी भाई इको करे, इको का टच दे। आए मेरे साथ मिलकर, आए मेरे साथ मिलकर इसमें शामिल हो जाए। तुझे सचाहे तू मुझको बना ले खुदाया मेरे, तू मुझको बचा ले। तू जैसा चाहे तू मुझको बना ले खुदाया मेरे, तू मुझको बचा ले। मैं तेरे हाथों में गीली पट्टी हूँ, मैं तेरे हाथों में गीली पट्टी हूँ। फिर से मैं तेरे हाथों में गीली पट्टी हूँ, मैं तेरे हाथों में गीली पट्टी हूँ। तू जैसा चाहे तू मुझको बना ले खुदाया मेरे, तू मुझको बचा ले। परों के नीचे तू मुझको छुपा ले खुदाया मेरे, तू मुझको बचा ले। आई ईमानदार कलीसिया यीशु का बदन होते हुए एक खूबसूरत इकरार जो हर ईमानदार को, हर यीशु मसीह को मानने और कबूल करने वाले को करने की जरूरत है। आए ईमानदारों के इकरार में शामिल हो जाएं और मेरे साथ मिलकर कहें, यीशु मसीह आप मेरे खुदावंद हैं, आप मेरे निजात दहिंदा हैं। आप ही के मुजस्सम होने से, आप ही के जिस्म लेने से मेरे जिस्म को तकवीयत मिली है, ताकि मैं अपनी मर्जी की जिंदगी ना गुजारूं, मैं अपनी ख्वाहिशात की जिंदगी ना गुजारूं, बल्कि मुकद्दसा मरियम की तरह मुजस्मे कलाम यीशु पर भरोसा करूं। वो मुझे जिंदगी दे सकता है, वो मुझे मुबारक ठहराता है। और आज अपने कलाम से यीशु ने मेरा फ्यूचर बदल दिया है, यीशु ने मेरी हालत बदल दी है। उसने मुझे नया इंसान बना दिया है, उसने मुझे नई शुरुआत दे दी है और वो उसका बेटा यीशु मसीह है। तो तुम दुनिया में तो रहो मगर दुनिया जैसे काम न करो। अब आप मुझे कबूल करें और पाक रूह के जरिया से अपने बेटे यीशु मसीह में, जो कि पाक है, जिंदा है और बेदाग है, उसमें कायम रह सको यीशु के नाम से, आमीन। अब आप आपका खात्म होते हुए सभी हाज़रीन और नाज़रीन को, जितनी जानों ने, बंदरों ने, रूहों ने आज एक नई शुरुआत को लिया है, दुआ करते हैं जैसे आपने उससे कहा कि जा सलामत रह, पर फिर गुनाह ना करना। ये जिंदगी भी महफूज रहे यीशु के नाम से। जोरदार शुक्रगुजारी करें, जोरदार हाथों को उठाए, आसमान की तरफ उठाकर जोरदार शुक्रगुजारी करें। हालेलुया, हालेलुया, बहुत शुक्रिया।